behalf of Crossword Bookstores. We would like to welcome each and everyone present here on a working day. And special thanks to Nandita ma'am, all our guests who are part of this book reading session. So we at Crossword aims to be a point of cultural and social interaction where authors and poets hold court, where children are regaled, where people gravitate to be informed, to be entertained, even enlightened. The name embodies the vision of Crossword as a place and space for people who seek information, knowledge, or just the pleasure of reading. Crossword stocks the widest range of books and non-books merchandise, and today we are 89 stores. So let me introduce first of all myself. I'm Harshil Shah. I'm marketing manager of Crossword Bookstores Pan India. I head the events and marketing. So yeah, so it's great. And when I got to know like there's a book reading session happening, especially on Manto, so I thought like let me grab this opportunity with both the hands and host myself. So here I am, and thanks to the publisher. So we have Alind representing the publishing. So we have Alind from Rajkamal Prakashan. So Rajkamal Prakashan is one of the biggest publishing house in Hindi publishing world, and they have been there around since almost 70 years now. And with every legendary names you can think of in Hindi writing, they must have published them. And so they have published legendary names like Suryakant Tripathi Nirala, Bhagwati Charan Varma, Krishna Sopti, and many more such names you can think of in the world of literature in Hindi. Before that, I would also like to introduce Yunus Khan. So we have a huge round of applause for everyone who's present here, all our guests, and special thanks to ma'am, and hearty congratulations on the launch of Manto. And we look forward, so I have been following your efforts in past, and finally it has seen a day of the light, and we wish you make many more such inspirational and aspirational movies. So about Yunus Khan coming back, so he is the RJ in Vivid Bharati Services, India's premium radio station, a poet, columnist, and a writer. He have also done radio shows with Amir Khan for his show Satyamev Jayate. So without wasting much of time, and we have dearth of time, like ma'am is leaving by 7, so I would request Yunus Khan ji to take the stage and read some excerpts from the book. Thank you. शुक्रिया। आज मंटो की ठंडा गोश्त यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, और जाहिर है कि ये एक ऐसी कहानी है जो बहुत ज़्यादा चर्चित रही है। एक इमोशनल उतार चढ़ाव वाली कहानी, झटकेदार कहानी है। शुरू करते हैं। ठंडा गोश्त। ईशर सिंह ज्यों ही होटल के कमरे में दाखिल हुआ, कुलवंत कौर पलंग पर से उठी, अपनी तेज तेज आंखों से उसकी तरफ घूर के देखा और दरवाजे की चिटखनी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। शहर का मुजाफात एक अजीब पुरअसर खामोशी में गर्क था। मुजाफात यानी आसपास का इलाका। कुलवंत कौर पलंग पर आलती पालती मारकर बैठ गई। ईशर सिंह, जो गालिबन अपने परागंदा ख्यालात के उलझे हुए धागे खोल रहा था, हाथ में किरपान लिए एक कोने में खड़ा था। चंद लम्हात इसी तरह खामोशी में गुजर गए। कुलवंत कौर को थोड़ी देर के बाद अपना आसन पसंद न आया और वो दोनों टांगें पलंग के नीचे लटकाकर उन्हें हिलाने लगी। ईशर सिंह फिर भी कुछ न बोला। कुलवंत कौर भरे भरे हाथ पैरों वाली औरत थी, चौड़े चकले कूल्हे थुलथुल करने वाले गोश्त से भरपूर, कुछ बहुत ही ज्यादा ऊपर को उठा हुआ सीना, तेज आंखें, बालाई होठों पर बालों का सुरमई गुबार। थोड़ी की साख्त से पता चलता था कि बड़े धड़ल्ले की औरत है। ईशर सिंह सिर न्योढ़ाए एक कोने में चुपचाप खड़ा था। सिर पर उसकी कसकर बांधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। उसके हाथ जो किरपान थामे हुए थे थोड़े थोड़े लर्जा थे, मगर उसके कदो कामत और खद्दो खाल से पता चलता था कि वो कुलवंत कौर जैसी औरत के लिए मौजू तरीन मर्द है। चंद और लम्हात जब इसी तरह खामोशी से गुजर गए तो कुलवंत कौर छलक पड़ी, लेकिन तेज तेज आंखों को नचाकर वो इस कदर कह सकी
ईशर सिंह? ईशर सिंह ने गर्दन उठाकर कुलवंत कौर की तरफ देखा, मगर उसकी निगाहों की गोलियों की ताब न लाकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कुलवंत कौर चिल्लाई, ईशर सिंह? लेकिन फौरन ही आवाज भींच ली और पलंग पर से उठकर उसकी जानिब जाते हुए बोली, कहां रहे तुम इतने दिन? ईशर सिंह ने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी, मुझे मालूम नहीं। कुलवंत कौर भन्ना गई, यह भी कोई माया जवाब है? ईशर सिंह ने किरपान एक तरफ फेंक दी और पलंग पर लेट गया। ऐसा मालूम होता था वो कई दिनों का बीमार है। कुलवंत कौर ने पलंग की तरफ देखा जो अब ईशर सिंह से लबालब भरा था। उसके दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया। चुनाचे उसके माथे पर हाथ रखकर उसने बड़े प्यार से पूछा, जानी क्या हुआ है तुम्हें? ईशर सिंह छत की तरफ देख रहा था। उससे निगाहें हटाकर उसने कुलवंत कौर के मानूस चेहरे को टटोलना शुरू किया। कुलवंत? उसकी आवाज में दर्द था। कुलवंत कौर सारी सिमट कर अपने बालाई होठ में आ गई। हां जानी, कहकर वो उसको दांतों से काटने लगी। ईशर सिंह ने पगड़ी उतार दी। कुलवंत कौर की तरफ सहारा लेने वाली निगाहों से देखा। उसके गोश्त भरे कूल्हे पर जोर से धप्पा मारा और सिर को झटका देकर अपने आप से कहा, यह खुड़िया दिमाग ये खराब है। झटका देने से उसके केश खुल गए। कुलवंत कौर उंगलियों से उनमें कंघी करने लगा। ऐसा करते हुए उसने बड़े प्यार से पूछा, ईशर सिंह, कहां रहे तुम इतने दिन? बुरे की मां के घर। ईशर सिंह ने कुलवंत कौर को घूर कर देखा और दफवतन दोनों हाथों से उसके उभरे हुए सीने को मसलने लगा। कसम वाहेगुरु की, बड़ी जानदार औरत हो। कुलवंत कौर ने एक अदा के साथ ईशा सिंह के हाथ एक तरफ झटक दिए और पूछा, तुम्हें मेरी कसम बताओ, कहां रहे? शहर गए थे? ईशर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए जवाब दिया, नहीं। कुलवंत कौर चिढ़ गई, नहीं, तुम जरूर शहर गए थे और तुमने बहुत सा रुपया लूटा है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। वो अपने बाप का तुखम ना हो जो तुमसे झूठ बोले। कुलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फौरन ही भड़क उठी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, उस रात तुम्हें हुआ क्या? अच्छे भले मेरे साथ लेटे थे। मुझे तुमने वो तमाम गहने पहना रखे थे जो तुम शहर से लूट के लाए थे। मेरी पप्पियां ले रहे थे, पर जाने एकदम तुम्हें क्या हुआ? उठे और कपड़े पहनकर निकल गए। ईशर सिंह का रंग जर्द हो गया। कुलवंत कौर ने यह तब्दीली देखते ही कहा, देखा कैसे रंग पीला पड़ गया? ईशर सिंह, कसम वाहे गुरु की, दाल में जरूर कुछ काला है। तेरी जान की कसम, कुछ भी नहीं। ईशर सिंह की आवाज बेजान थी। कुलवंत कौर का शुभा और ज्यादा मजबूत हो गया। बालाई होंठ भींच कर उसने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, ईशर सिंह, क्या बात है? तुम वो नहीं हो जो आज से 8 रोज पहले थे। ईशर सिंह एकदम उठ बैठा जैसे किसी ने उस पर हमला किया था। कुलवंत कौर को अपने तनोमंद बाजुओं में समेट कर उसने पूरी कुव्वत के साथ उसे भंभोड़ना शुरू कर दिया। जानी, मैं वही हूं, गुट गुट कप, घुट घुट पा जप्पियां, तेरी निकले हड्डियां दी गर्मी। कुलवंत कौर ने कोई मुजाहमत न की, लेकिन वो शिकायत करती रही, तुम्हें उस रात हो क्या गया था? बुरे की मां का वो हो गया था। बताओगे नहीं? कोई बात हो तो बताओ। मुझे अपने हाथों से जलाओ अगर झूठ बोलो। ईशर सिंह ने अपने बाजू उसकी गर्दन में डाल दिए और होंठ उसके होंठों में गाड़ दिए। मूंछों के बाल कुलवंत कौर के नथुनों में घुसे तो उसे छींक आ गई और दोनों हंसने लगे। ईशर सिंह ने अपनी सदरी उतार दी और कुलवंत कौर को शहवत भरी नजरों से देखकर कहा, आ जाओ, एक बाजी ताश की हो जाए। कुलवंत कौर के बालाई होंठों पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूट आई थीं। एक अदा के साथ उसने अपने आंखों की पुतलियां घुमाई और कहा, चल दफन हो। ईशर सिंह ने उसके उभरे हुए कूल्हों पर जोर की चुटकी भरी। कुलवंत कौर तड़प कर एक तरफ हट गई। न कर ईशर मियां, मेरे दर्द होता है। ईशर सिंह ने आगे बढ़कर कुलवंत कौर का बालाई होंठ अपने दांतों तले दबा दिया और किचकिचाने लगा। कुलवंत कौर बिल्कुल पिघल गई। ईशर सिंह ने अपना कुर्ता उतार के फेंक दिया और कहा,
लो फिर हो जाए तो रब चाल। कुलवंत कौर का बालाई होंठ कपकपाने लगा। ईश्वर सिंह ने दोनों हाथों से कुलवंत कौर की कमीज का घेरा पकड़ा और जिस तरह से बकरे की खाल उतारते हैं उसी तरह उसको उतार कर एक तरफ रख दिया। फिर उसने घूर के उसके नंगे बदन को देखा और जोर से उसके बाजू पर चुटकी भरते हुए कहा, कुलवंत, कसम वाहे गुरु की, बड़ी करारी औरत है तू। कुलवंत कौर अपने बाजू पर उभरते हुए लाल धब्बे को देखने लगी। बड़ा जालिम है तू ईशर। ईशर सिंह अपनी घनी काली मूंछों में मुस्कुराया, होने दे आज जुल्म, और ये कहकर उसने मजीद जुल्म ढाने शुरू कर दिए। कुलवंत कौर का बालाई होंठ दांतों तले किचकिचाया, कानों की लौ को काटा, उभरे हुए सीने को भंभोड़ा, भरे हुए कूल्हों पर आवाज पैदा करने वाले चांटे मारे, गालों के मुंह भर भर के बोसे लिए, चूस चूस कर उसका सारा सीना थूकों से लथेड़ दिया। कुलवंत कौर तेज आंच पर चढ़ी हुई हाड़ी की तरह उबलने लगी। लेकिन ईशर सिंह इन तमाम हीलों के बावजूद खुद में हरारत न पैदा कर सका। जितने गुर और जितने दांव उसे याद थे, सब के सब उसने पिट जाने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल कर दिए, पर कोई कारगर न हुआ। कुलवंत कौर ने, जिसके बदन के सारे तार तन कर खुद ब खुद बच रहे थे, गैर जरूरी छेड़छाड़ से तंग आकर कहा, ईशर मियां काफी फेंक चुका है, अब पत्ता फेंक। ये सुनकर ईशर सिंह के हाथ से जैसे ताश की सारी गड्डी नीचे फिसल गई। हाँफता हुआ वो कुलवंत कौर के पहलू में लेट गया और उसके माथे पर सर्द पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत कौर ने उसे गरमाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। अब तक सब कुछ मुंह से कहे बगैर होता रहा, लेकिन जब कुलवंत कौर मुंतजिर ब अमल आजा को सख्त नाउम्मीदी हुई तो वो झल्ला कर पलंग से उतर गई। सामने खूंटी पर चादर पड़ी थी, उसको उतार कर उसने जल्दी जल्दी ओढ़कर और नथुने फुलाकर बिफरे हुए लहजे में कहा, ईशर सिया, वो कौन हरामजादी है जिसके पास तू इतने दिन रहकर आया है और जिसने तुझे निचोड़ डाला है? ईशर सिंह पलंग पर लेटा हाँफता रहा और उसने कोई जवाब न दिया। कुलवंत कौर गुस्से से उबलने लगी, मैं पूछती हूं, कौन है वो चड्डो, कौन है वो अलिफ्ती, कौन है वो चोर पत्ता? ईशर सिंह ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, कोई भी नहीं कुलवंत, कोई भी नहीं। कुलवंत कौर ने अपने भरे हुए कूल्हों पर हाथ रखकर एक अज़्म के साथ कहा, ईशर सिया, मैं आज झूठ सच जान के रहूंगी, खा वाहे गुरु की कसम, क्या इसकी तह में कोई औरत नहीं? ईशर सिंह ने कुछ कहना चाहा, मगर कुलवंत कौर ने इसकी इजाजत न दी। कसम खाने से पहले सोच ले कि मैं भी सरदार निहाल सिंह की बेटी हूं, टिक्का बोटी कर दूंगी अगर तूने झूठ बोला। ले, अब खा वाहे गुरु की कसम, क्या इसकी तह में कोई औरत नहीं है? ईशर सिंह ने बड़े दुख के साथ इस बात में सिर हिलाया। कुलवंत कौर बिल्कुल दीवानी हो गई। उसने लपक कर कोने में से किरपान उठाई, म्यान को केले की छिलकी की तरह उतार कर एक तरफ फेंका और ईशर सिंह पर वार कर दिया। आन की आन में लहू के फव्वारे छूट पड़े। कुलवंत कौर की इससे भी तसल्ली ना हुई तो उसने वहशी बिल्लियों की तरह ईशर सिंह के केश नोचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ वो अपनी नामालूम सौत को मोटी मोटी गालियां देने लगी। ईशर सिंह ने थोड़ी देर के बाद नकाहत भरी इल्तिजा की, जाने दे अब कुलवंत, जाने दे। उसकी आवाज में बला का दर्द था। कुलवंत कौर पीछे हट गई। खून ईशर सिंह के गले से उड़ उड़कर उसकी मूंछों पर गिर रहा था। उसने अपने लर्जा होठ खोले और कुलवंत कौर की तरफ शुक्रिये और गिले की मिली जुली निगाहों से देखा, मेरी जान, तुमने बहुत जल्दी की, लेकिन जो हुआ ठीक है। कुलवंत कौर का हसद फिर भड़का, मगर वो कौन है तुम्हारी मां? लहू ईशर सिंह की जुबान तक पहुंच गया। जब उसने उसका जायका चखा तो उसके बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। और मैं भेड़िया 6 आदमियों को कत्ल कर चुका हूं इसी किरपान से। कुलवंत कौर के दिमाग में सिर्फ दूसरी औरत थी और वो कहे जा रही थी, कौन है वो हरामजादी? मैं पूछती हूं, कौन है वो हरामजादी? ईशर सिंह की आंखें धुंधला रही थीं। एक हल्की सी चमक उनमें पैदा हुई और उसने कुलवंत कौर से कहा, गाली न दे उस बड़वी को।
कुलवंत चिल्लाई। मैं पूछती हूं कौन है वो? ईशर सिंह के गले में आवाज रुक गई। बताता हूं, ये कहकर उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और उस पर अपना जीता जागता खून देखकर मुस्कुराया। इंसान माया भी एक अजीब चीज है। कुलवंत कौर उसके जवाब की मुंतजिर थी। ईशर सिंह, तू मतलब की बात कर। ईशर सिंह की मुस्कुराहट उसकी भरी मूंछों में और ज्यादा फैल गई। मतलब की ही बात कर रहा हूं, गला चिरा हुआ है मेरा। अब धीरे धीरे ही सारी बात बताऊंगा। और जब वो बात बताने लगा तो उसके माथे पर ठंडे पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मेरे साथ क्या हुआ। इंसान कुड़िया भी एक अजीब चीज है। शहर में लूट मची तो सबकी तरह मैंने भी उसमें हिस्सा लिया। गहने पाते और रुपए पैसे जो भी हाथ लगे वो मैंने तुम्हें दिए, लेकिन एक बात मैंने तुम्हें नहीं बताई। लाहौर, 21 जनवरी। धोबी मंडी से पुलिस ने एक नौजायदा यानी नवजायदा बच्ची को सर्दी से ठिठुरते हुए सड़क के किनारे पड़ी हुई पाया और अपने कब्जे में ले लिया। धोबी मंडी से पुलिस ने एक नौजायदा बच्ची को सर्दी से ठिठुरते हुए सड़क के किनारे पड़ी हुई पाया और अपने कब्जे में ले लिया। किसी संगदिल बच्ची की गर्दन को मजबूती से कपड़े में जकड़ रखा था और उरियां जिस्म को गीले कपड़े में बांध रखा था कि वो सर्दी से मर जाए, मगर वो जिंदा थी। बच्ची बहुत खूबसूरत है, उसकी आंखें नीली हैं। बच्ची को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बहुत खूब बोले आप. So really a big round of applause for Yunus Khan. Wasn't he amazing, guys? Yeah, so the claps are very less, like, you know, we should give him a huge round of applause. And बहुत बहुत अच्छा आप बोले. बहुत बहुत धन्यवाद यूनुस खान. मेरे लिए तो काफ़ी सीनियर है, सो मैं अजय जी बुलाना चाहूँगा, उनको संबोधित करना चाहूँगा. So Ajay ji, he is a film critic, journalist and a blogger. He has worked as a critic for Dainik Jagran and maintains a popular Hindi blog Chawanni Chhap. And he has witnessed the film industry closely for a quarter of 25 years. So that's a, you know, a big, like a long time, I would say. So without wasting much of time, I would request Ajay ji to please come on stage. And Nandita Das ji, no need of any introduction, but still, as a formality, she has acted in more than 40 feature films in 10 different languages. Her latest work happens to be Manto, and hope everyone goes to the nearest cinema and, you know, sort of sees what efforts she has taken over the years to make this her dream happen. And yeah, she has also been as a chairperson of Children's Film Society from 2009 till 12. First Indian in Hall of Fame of International Women's Forum. Conferred Knight of Orders of Arts and Letters by French government. हम सभी दिल से ये दुआ करेंगे कि ये फिल्म नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते. बहुत बहुत शुक्रिया और नंदिता, नमस्कार और स्वागत आपका. और सबसे पहले मैं भी बधाई और दाद देता हूँ आपको कि आपने ऐसे वक्त में जब ठगों और चोर उचक्कों की कहानियाँ बन रही और सारे वो हमारे नायक हो गए हैं, वैसे दौर में आपने आजकल वही रोल मॉडल्स हैं, क्या करें. आपने एक तो आपने ये इस बात का जिक्र भी किया और हम लोग लगातार कह रहे हैं इस बात को कि लेखकों पर फिल्में नहीं बनी हैं. ये पहली हिंदी फिल्म है जो किसी लेखक पे बनी है. मुझे भी नहीं पता. मिर्जा गालिब को ले लें. मिर्जा गालिब पर सोहराब मोदी. हाँ नहीं, वो तो मंटो ने लिखी थी, बल्कि वो स्क्रिप्ट. बिल्कुल हाँ, बहुत साल पहले 1954 में या कुछ उनको अवार्ड. जी. तो मंटो इस हिसाब से पहली फिल्म हो जाएगी. तो सबसे पहला सवाल तो यही बनता है आपसे, और शायद आपने जवाब भी दिया होगा कि मंटो ही क्यों. जी, मंटो ही क्यों, क्योंकि मंटो कितने ख़ास हैं वो जो उनको पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, वो बताएंगे. राइटर्स तो बहुत हैं और इसमें कोई कंपटीशन नहीं है. और भी मतलब फिल्में बननी चाहिए. प्रेमचंद के बारे में बननी चाहिए, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बननी चाहिए, सुब्रमण्यम भारती के बारे में बननी चाहिए, इस्मत चुगताई के बारे में बननी चाहिए. बहुत लोग हैं, पर मेरा अपना क्यों मंटो ही क्यों अगर मैं कहूँ तो
सबसे पहले मैंने उन्हें कॉलेज में पढ़ा था, उनकी कहानियों से ही वाकिफ़ थी मैं। और फिर 2012 में जब उनकी शताब्दी मनाई गई तो बहुत लोगों ने उनके बारे में लिखा और उनके एसेज भी ट्रांसलेट होने लगे। मुझे पता ही नहीं था तब तक कि वो उनके एसेज भी थे। और जब मैं उनके बारे में जानने लगी तो मुझे लगा कि ये कुछ बहुत ही ख़ास आदमी है और बहुत मॉडर्न है, और आजकल की जो हमारी परेशानियां हैं, जिन चीज़ों से हम जूझ रहे हैं, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई 1940s की कहानी पढ़ रही हूँ। और मैं चाहती थी कि मैं अगर मुझे कोई ज़रिया मिले, आजकल जो हमारे समाज में जो हो रहा है उसको रिस्पॉन्ड करने का कोई ज़रिया मिले, तो मुझे लगा मंटो से बेहतर कोई शायद ज़रिया नहीं है। और अगर मैं उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँ कि किन चीज़ों से आजकल हम जूझ रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि हमारे समाज में हमें कई तरीके से बांटा जा रहा है, चाहे वो मज़हब के नाम पे हो, जात पात के नाम पे हो, आदमी औरत के नाम पे हो, तो क्लास के नाम पे हो, हर चीज़ में हमें बांटा जा रहा है और एक तरह की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खेली जा रही है जिसमें हम सब फंसते जा रहे हैं। और मंटो उस इंसानियत और एक ह्यूमैनिटी की जो बात करते थे अपनी कहानियों के ज़रिए, अपने एसेज के ज़रिए, अपनी ख़ुद की ज़िंदगी को एक मिसाल बनाते हुए, वो बहुत मेरे लिए अहम था। दूसरा था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज आर्टिस्ट मैंने ख़ुद सफ़र किया है फायर से, उससे भी मैं जूझती आई हूँ। और वैसे भी किसी भी सोसाइटी को ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके आर्टिस्ट, उनके फिल्म मेकर्स, उनके राइटर्स को वो जगह मिले, वो ख़ुद आज़ाद होके अपनी बात कह सके। और उन पे भी ठंडा गोश्त जो अभी आपने सुना, वो और 5 और कहानियों पे मुकदमे भी चले थे। और सिर्फ मुकदमे नहीं, पर उनके अपने भी दोस्त थे जो अपने प्रोग्रेसिव राइटर्स भी थे, वो भी कतराते थे कि आप क्यों इन पेशियाओं के बारे में क्यों लिख रहे हैं, आप अंग्रेज़ों की हुकूमत के बारे में लिखिए, वो भी उन्होंने लिखा था। अब मिल वर्कर के बारे में लिखिए, वो भी उन्होंने लिखा था। पर उनका ये था कि भाई मैं औरतों के बारे में क्यों नहीं लिख सकता हूँ, मैं सेक्स वर्कर्स के बारे में क्यों नहीं लिख सकता, वो भी हमारे समाज का हिस्सा है, वहाँ जाने पे कोई पाबंदी नहीं है, पर उनके बारे में लिखने पे बड़ी पाबंदी है। तो उनका ये कहना था कि जो लोग समाज से मार्जिनलाइज्ड हो गए हैं उनके बारे में लिखना ज़रूरी है। वो आम भाषा में लिखते थे, उसमें हिंदी के भी लफ्ज़ थे, अंग्रेज़ी के भी लफ्ज़ थे, बहुत कोलोकियली मुश्किल उर्दू के भी कुछ लफ्ज़ थे, पर फिर भी वो बहुत हाई फलूटिंग उर्दू राइटर, कई लोग तो उर्दू जो राइटर्स थे वो उनको इतना उर्दू राइटर के हिसाब से भी ज़्यादा नहीं मानते थे, कहते थे कि अरे ये तो बहुत ही आप फैसाबा के खुद कहते हैं कि भाई ये मतलब उस पैमाने का नहीं है जितना लिटरेचर के पैमाने को पूरा नहीं करता है। तो उस तरह के मंटो को बहुत तकलीफ, ईगोइस्टिक भी थे, एरोगेंट भी थे। और मैं मंटो को उनकी अच्छाई बुराई के साथ ही दिखाना चाहती थी, जैसे खुद मंटो चाहते। उन्होंने किसी भी चीज़ का कोई आडंबर बना के उसको ज़्यादा खूबसूरती से, जो चीज़ वो हमेशा ये कहते थे कि जो चीज़ जैसी है उसे वैसे ही क्यों ना पेश किया जाए। वो कहते थे कि हकीकत से इनकार करना क्या हमें बेहतर इंसान बनाएगा, टाट को रेशम क्यों कहा जाए, जो चीज़ जैसी है उनका यही था। तो हम लोग एक तरह से सिनेमा के थ्रू, राइटिंग के थ्रू, आर्टिस्ट होने के नाते हम एक तरह से मिरर दिखाने की कोशिश करते हैं समाज में क्या चल रहा है, अच्छा भी है बुरा भी है। इवन एज एन एक्ट्रेस मुझ पर बहुत तोहमत लगती थी कि आप ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं जो हमारे इंडिया, हमारे देश को, हमारे कल्चर को सही तरीके से नहीं दिखा रही है। भाई जिसे अपने मुल्क से प्यार होगा वही उसकी अच्छी बुरी सब चीज़ दिखाएगा, ताकि जो बुरी चीज़ है वो हम देखेंगे तभी उसको निकालेंगे। तो एक तरह से मंटो के साथ मुझे ऐसा लगा कि मेरा कुछ एक पर्सनल सा नाता था एक उनकी बहुत सारी चीज़ों में मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक मैं भी ऐसा सोचती हूँ और इस तरह से मुझे रेजोनेट कर रही हैं वो सारी चीज़ें। तो मुझे लगा मंटो के ज़रिए मैं एक तरह से अपने दिल की बात कह सकती हूँ। अच्छा, फिल्म हो सकता है बहुत सारे लोगों ने देख रखी हो, नहीं ज़्यादातर नहीं देखी, और इन्हीं की बदौलत फिल्म ज़्यादा चल भी नहीं रही है। देख रखी थी? अरे वाह, थैंक यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल। अरे दैट्स वेरी गुड। नहीं, क्योंकि आजकल बल्कि मैं थोड़ी नाराज़ भी हूँ। और आपका वो लेख बहुत ही अच्छा है, आपने मैंने मिड में लिखा भी नहीं, चाहे वो किताबों के बारे में हो, चाहे वो कहानी मतलब राइटर्स के बारे में हो, या फिल्म मेकर्स के बारे में, फिल्म के बारे में हो, हर तरह के आर्ट में आजकल एक पॉपुलिज्म आ गया है जिसे हम मेन स्ट्रीम कहते हैं, और दूसरी चीज़ को नीश बोल देते हैं, आर्ट हाउस बोल देते हैं, बहुत सारे लेबल्स लगा देते हैं। हालांकि आर्ट सिनेमा अब नहीं कहा जाता, लेकिन हाँ, पैरेलल सिनेमा और वो सब तो नाम भी चले गए हैं, तो फिल्में तो चली गई हैं, नाम भी चले गए, अच्छा ही है। लेकिन आजकल वो मिडल ऑफ द रोड सिनेमा, मल्टीप्लेक्स सिनेमा, नए नाम आ गए। पर क्या होता है कि जब तक
एज ऑडियंसेस हम उसकी डिमांड नहीं करेंगे। हम थिएटर में, ये फिल्म भी आएगी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, लोग इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखेंगे और उससे हम खुश भी हैं कि कम से कम वहाँ तो देखेंगे। पर एक थिएटर में जाके जो एक एक्सपीरियंस, एक पर्सनल एक एक्सपीरियंस होता है और एक सोशल एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग टू अ थिएटर, ये अब हमने मान लिया है कि जब तक बहुत बड़ी एक्शन फिल्म ना हो, बहुत खूबसूरत एक्ट्रेसेस ना लगें और वो डांस अच्छे से ना करें और इस तरह का मतलब जो सारा होता है ताम झाम, जब तक ना हो तब तक थिएटर में जाने का क्या फ़ायदा। पर मेरी जो खुद की यादें हैं, जिस तरह की फिल्में मैंने ज़्यादातर फेस्टिवल्स में देखी हैं, हमारे यहाँ भी बाहर भी, तो वो छोटी से छोटी फिल्म, छोटी बड़ी उसके बजट से या उसके प्रोडक्शन डिज़ाइन से नहीं होती है, उसके आइडिया से, उसके विजन से होती है। तो इसीलिए बहुत दुख होता है कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं। मैं 6 साल से लगी हूँ, बहुत लोगों की इसमें नीयत है, मेहनत है, शिद्दत है, और फिर ऐसा होता है कि आखिर में एक हफ्ते के बाद आप सोचिए, जैसे एक मिड साइज फिल्म अगर 2000 स्क्रीन्स हैं, एक बड़ी ए लिस्ट एक्टर की फिल्म अगर 6000 है, तो मंटो जैसी फिल्म को 500 से भी कम थिएटर्स मिलते हैं और शो सेकंड वीक और शो टाइम भी गलत होते हैं। और सेकंड वीक में वो जो 490 जो हमें मिले थे वो अब 50 हो गए हैं। और उनका ये कहना है कि भाई लोग नहीं आ रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर्स कह रहे हैं जहाँ 80% भी पैक्ड है, अगर उनको 100% मिल रहा है एक सुई धागे से, तो हम वो क्यों ना ले। उनकी भी बात सही है। और हमारे सब दोस्त हमें कह रहे हैं नहीं बहुत अच्छी है, या 80% पैक थी, 90% थी, फिर भी 100% तो नहीं थी ना। तो ये झगड़ा या ये जो जद्दोजहद है, इसमें हम सब कंप्लिसिट हैं, हम सब की भागीदारी है। जो बना रहे हैं, जो उसको देख रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, सबकी जिम्मेदारी अगर हो जाए। और हम नहीं कह रहे कि मेन स्ट्रीम को नहीं, वो मेन स्ट्रीम सिनेमा को तो हमेशा वो जगह मिलेगी, बट अलग अलग कहानियाँ, अगर हम चाहते हैं कि इस देश की, इस दुनिया की, इस समाज की जो डाइवर्सिटी है वो हमारी फिल्म में रिफ्लेक्ट हो। ये सिर्फ मंटो की लड़ाई नहीं है, मेरे लिए भी ये सिर्फ मंटो के लिए नहीं है। चलिए हमें तो बहुत तारीफ़ें काफ़ी मिल गई, कुछ अवार्ड्स मिल जाएंगे, बाहर भी बड़े बड़े फेस्टिवल्स में हो गया, जिन लोगों ने देखी उन्होंने पसंद की है, उससे भी हम चाहें तो खुश रह सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जिस तरह से मंटो एक्सेसिबल थे उनके ज़माने में, कि चाय वाला भी वेट करता था उनके कॉलम के लिए, वो चीज़ आज क्यों नहीं हो सकती है। हम कौन है ये सोचने वाले कि हमें तो समझ आ रही है, जो आम आदमी उसको नहीं समझ आएगी। ये तो हमारा एरोगेंस है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम मंटो को जानते हैं। तो हमने तो फिल्म यही सोच के बनाई है कि आप मंटो को नहीं जानते तब भी आप देख सकते हैं। मैंने अपने ड्राइवर को दिखाई, मेरे घर में जो काम करते हैं उनको दिखाई, और यही जानने के लिए भी कि भाई उसके लिए क्या बहुत पढ़ा लिखा, और उसके लिए दिल चाहिए बस। अगर आप कनेक्ट करते हो और वो उसका सार जो कहना हम चाह रहे हैं वो पूरी तरह से समझ रहे हैं, उसके लिए कोई हाईफलूटिंग उर्दू ज्ञानी की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए ये एक लंबी लड़ाई है, और इसके लिए मैं चाहूँगी कि ऑडियंसेस भी मंटो और जितनी फिल्में जो आपको लगे कि इंडिपेंडेंट सिनेमा का हिस्सा हैं, अलग कहानियाँ बता रहे हैं, और मैं भी, आई एम ऑल्सो गिल्टी ऑफ इट। कई बार ऐसी फिल्में होती है जो मैं देखना चाहती हूँ, मैं सोचती हूँ अरे अब कहाँ जाऊँ मैं अंधेरी देखने के लिए, मेरे बगल में तो है नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पे काफी लोग एक्टिव थे और वो डिमांड कर रहे थे। डिमांड मेरे पास तो रोज इतने मतलब ईमेल्स आते हैं, सोशल मीडिया पे आता है, मैं अमरावती से हूँ, मुझे नहीं दिखाई दे रही है। अमृतसर में नहीं थी, जहाँ मंटो खुद मतलब जहाँ पले बढ़े थे वहाँ नहीं थी। फिर हमने ज़बरदस्ती करके, मैंने कहा आप अमृतसर में तो एक डालिए तो हर जगह नॉर्थ ईस्ट को तो बिल्कुल ही, मतलब नॉर्थ ईस्ट तो हमारे मैप में भी नहीं आता। हाँ, हमारे मैप में भी नहीं आता। तो हमने इतने लोगों को मार्जिनलाइज कर दिया है कि ये बीच में जो हैं वो कौन लोग हैं जो सारे डिसीजंस पूरे देश के लिए ले रहे हैं। वो कौन लोग हैं? वो बहुत चंद लोग हैं, मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स के लोग हैं, अपर कास्ट लोग हैं, जो हम सब के लिए डिसाइड कर रहे हैं। तो ये लड़ाई, इट्स नॉट अबाउट मंटो द फिल्म, इट्स अ मच larger I think battle, and I think we all need to take part in it, otherwise we will be stuck with a very very limited choice, we will be stuck with a same kind of narrative, and इसमें हमारा ही नुकसान होगा। सॉरी कोई बात नहीं, अच्छा। लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहता था, और शायद और भी लोगों की ये जिज्ञासा, फिल्म के लिए जो क्राफ्ट या फॉर्म आपने चुना, जिसमें उनके ज़िंदगी की कुछ घटनाएं हैं, कुछ कहानियां हैं, ये वाला फॉर्मेट क्यों अपनाया और इससे क्या फ़ायदा हुआ आपको? देखिए, जैसे अगर मैं किसी म्यूजिशियन के बारे में फिल्म बनाती और उनका म्यूज़िक आपको न सुनाती तो कैसा लगता?
उसी तरह से अगर मैं किसी राइटर की कहानी आपको दिखा रही हूँ तो उनकी कहानियों से वाकिफ़ कराना या कम से कम उसकी झलक आपको देना मुझे लगा बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए मैंने 5 कहानियाँ चुनी। कहानियाँ तो मुझे बहुत सारी पसंद है, लेकिन उसमें से 5 मैंने चुनी जो कुछ हद तक आपको मंटो का एक पूरा फ्लेवर देती है कि उनकी किस तरह की सेंसिटिविटी औरतों के लिए थी, ख़ास तौर से सेक्स वर्कर्स के बारे में किस तरह की अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी थी। साथ में पार्टीशन, हमें पता है कि पार्टीशन ने उन पे बहुत गहरा असर किया था। हमारी ज़िंदगियों में भी बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हो जाते हैं हमारे इंडिया में, दुनिया में, हम उसके बारे में बात करते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, पर इतना पर्सनली नहीं लेते, उससे हमारी ज़िंदगी उस कदर हिलती नहीं है। जबकि उनकी ज़िंदगी बहुत डीपली इम्पैक्टेड हो गई थी और उन्होंने इनफैक्ट उनकी पार्टीशन स्टोरीज आर द मोस्ट डिफाइनिंग स्टोरीज। कई यूनिवर्सिटीज़ में टोबा टेक सिंह जो कहानी है उसे बाकायदा पढ़ाया जाता है और बहुत कम ऐसा हुआ है कि आप फिक्शन का सहारा लेते हैं आप फैक्ट को समझाने के लिए, क्योंकि उनकी फिक्शन में भी रियलिटी और फैक्ट और फिक्शन के बीच में जो लाइन थी वो बहुत ब्लर्ड थी। कभी कभी पता ही नहीं चलता था कि ये कहानी है या नहीं। इसमें मोहम्मद भाई है शायद ना कहानी, तो मोहम्मद भाई एक कैरेक्टर है, वो लोकल ठग हैं वहाँ के, और वो बताते हैं, बहुत इंटरेस्टिंगली उनको डिस्क्राइब किया गया है कि वो एक पतले से आदमी हैं और एक्चुअली जब वो सुनते थे कि वो ठग हैं तो उनको वो एक इमेजिन करते थे मोहम्मद भाई को, और फाइनली जब वो बीमार पड़े और मोहम्मद भाई खुद सामने आए तो उन्होंने देखा कि वो तो बहुत ही एक पतले सुकड़े से थे लेकिन उनकी मूछें बहुत बड़ी बड़ी थी। तो उसके थ्रू वो बहुत मज़ेदार चीज़ों की बात करते हैं। तो मुझे लगता है फिल्म से हम थोड़ा किताब पे भी आ जाएं, क्योंकि आज हम किताब और ये चयन का आधार क्या था और चयन का, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि हम एसेज, मुझे बहुत ख्वाहिश थी कि हम एसेज भी इसमें इंक्लूड करें, और उन्होंने कुछ पॉलिटिकल सैटायर्स भी किए थे जो चचा सैम के नाम ख़त, यानी लेटर्स टू अंकल सैम, जो अमेरिका को ख़त लिखे थे, जो आज भी बहुत, जिन लोगों ने फिल्म देखी है उसकी एक झलक आपको मिली होगी, तो वो भी थे। और उन्होंने कुछ बहुत छोटी छोटी कहानियाँ लिखी थी, मतलब लिटरली लाइक हाइकू पोइट्री जैसी होती है, 2-2, 4-4 लाइन की कहानी। उसका एक कलेक्शन उन्होंने सियाह हाशिए नाम की एक किताब में उसको छापा था, अंग्रेज़ी में ब्लैक मार्जिन्स के नाम पे था। देखो मरा नहीं, अब भी जान बाकी है, रहने दो यार, अब मैं थक चुका हूँ। मतलब मार मार के लोग कैसे थक गए थे उसके बारे में भी उन्होंने ऐसी 2 लाइन में बता दिया कि इस कदर, इस लेवल का वायलेंस उस ज़माने में हुआ होगा। तो अलिन जी की कुछ परेशानियां थी जिसकी वजह से वो नहीं उसको इंक्लूड कर पाए, शायद किस वजह से नहीं कर पाए वैसे आप। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग, राजकमल ने इनकी किताब से ही मेरी वैसे मंटो की शुरुआत हुई, क्योंकि मैंने दस्तावेज़ जो एक 5 वॉल्यूम का कलेक्शन है जो देवनागरी में निकला है, वो मेरे पास अभी भी, वो पुरानी, मतलब उसके चिथड़े हो गए तकरीबन, उसमें मेरे बहुत सारे नोट्स और हाथ से बनाया हुआ स्केच है उसको। जी। तो वो 5 वॉल्यूम्स का है, उसमें उनके रेडियो प्लेज हैं, उनके ये सियाह हाशिए का पूरा कलेक्शन है, एसेज हैं। उन्होंने बायोग्राफिकल स्केचेस भी लिखे थे जो अशोक कुमार, नरगिस, श्याम जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपने फिल्म में देखा होगा, वो है गंजे फरिश्ते के नाम से उन्होंने एक कलेक्शन किया, उसका अंग्रेजी में नाम है स्टार्स फ्रॉम अनदर स्काई। क्योंकि यही होता है ना, अगर हम अपने राइटर्स को सेलिब्रेट करें, अपने आर्टिस्ट को सेलिब्रेट करें, तो ये तो रूह है हमारे समाज की, दे आर ऑल्सो द कॉन्शियंस ऑफ अ सोसाइटी। उनको ना करके आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जैसे जो आजकल तो अभी मैं नवाज के साथ हर शहर में जा रही थी इसके प्रमोशन के लिए, सब लोग फैजल और गायतोंडे के नारे लगा रहे थे, यंग लोग, कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है। अब मैं भी सीख गई हूँ, तो मैं उनको बोलती थी, मैंने नवाज को कहा, नवाज अब तुमसे ऐसा कोई पूछे तो बोल दो, कभी कभी लगता है अपन ही मंटो है। अच्छा, मुझे ये लगता रहा, शुरू में भी मैंने ये बात अपने सोशल मीडिया पर कही थी कि फिल्म देखने के पहले उनकी कहानियाँ जरूर पढ़ लें, उनकी राइटिंग पढ़ लें। यह किताब भी आई है, इस किताब के आने के बाद भी हमने जिक्र किया कि फिल्म देखने के पहले एक कलेक्शन पहले पढ़ें बाद में पढ़ें। हाँ। फिल्म से इंस्पायर हो के किताब पढ़ें, किताब से इंस्पायर हो के फिल्म देखें, उससे इंस्पायर हो के। कितना जरूरी आप मानते हैं कि अगर लेखक पर बनी हुई कोई फिल्म है तो लेखक की राइटिंग से हमें वाकिफ होना जरूरी है? नहीं, मेरे हिसाब से कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ। क्योंकि फिल्म भी एक तरह से इंट्रोड्यूस ही कर रही है। बिल्कुल। हाँ। और पर दोनों चीज़ें होनी चाहिए, दोनों अपनी जगह हैं, क्योंकि जो स्टोरीज हैं वो पूरी हैं। ठंडा गोश्त का यूनुस साहब ने शायद उसका एंड आप लोग भी सोच रहे होंगे वो बच्ची की बात कहाँ से आ गई,
वो एक और कहानी की थी, मैं भी थोड़ी सी आप चाहें तो आप इसमें से एंड कर लें तो मैं पढ़ लूँ उसका एंड का हिस्सा, ताकि क्योंकि बहुत जो हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। पर वो एक और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी है जिससे हाँ हाँ ये बात नहीं, क्यों इसलिए मैं चाहती थी क्योंकि मैं चाहती थी कि मंटो ये ठंडा गोश्त के बारे में थोड़ा सा मैं कहूँ, क्योंकि इस पे सबसे लंबा उनका मुकदमा चला और जिसकी वजह से ही सफ़र्ड अ लॉट, और उसमें उनको उन पे इस तरह की चीज़ें कही गई कि भाई आपके किरदार तो बहुत ही गालियों से भरे हुए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और ये अजीब बात है क्योंकि जब मैं सेंसर बोर्ड के सामने थी और उनके 22 पॉइंट्स जो उन्होंने सामने पेश किए तो मुझे लग रहा था कि 70 साल पहले जो मंटो साहब ने जो वहाँ वो बिल्कुल, मैंने उनको कहा भी, मैंने कहा वाह ये क्या बात है कि आज मैं वही आपसे कह रही हूँ। उन्होंने कहा ये लफ्ज़ आप निकाल दीजिए, ये लफ्ज़ निकाल दीजिए, तो मैंने कहा मैं अपने किरदारों से वही लफ्ज़ बुलवा रही हूँ जो वो आमतौर पे बोलेंगे, और यही मंटो साहब का एग्जैक्ट लॉजिक भी था। मंटो साहब ने एक और जगह ये कहा था कि भाई आप किसी भी लफ्ज़ या किसी भी जुमले को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं कर सकते, यू हैव टू सी इट इन द कॉन्टेक्स्ट एंड देन से इफ समथिंग इज ऑब्सीन और नॉट। और वही चीज़ें मैं भी उनसे लड़ रही थी, तो उन्होंने मुझे आखिर में कहा आपको तो जी लॉयर बन जाना चाहिए था। तो मैंने कहा कि हाँ ऐसे कामों के लिए, बट दे वर फाइनली वेरी गुड। उन्होंने सिर्फ 2-3 कुछ लफ्ज़ मुझे रिप्लेस करने को कहे, तो मैंने कहा मैं रिप्लेस तो नहीं करूँगी, मैं उन्हें म्यूट करूँगी ताकि ऑडियंस खुद देख सके कि क्या म्यूट किया गया है। तो शायद आपके उसमें कहाँ तक था, ईश्वर सिंह की मुस्कुराहट, हाँ ये आपने कहा था। तो जब कुलवंत कौर बड़ी झुंझला के कहती है कि मतलब की बात कर, वो यहाँ वहाँ की बात जो यहाँ वहाँ मतलब वो दूसरी बात कह रहे थे कि किस तरह से उन्होंने 6 लोगों को मारा और फिर क्या हुआ, तो फिर वो कहते हैं अब जब वो बात बताने लगा तो उसके माथे पर ठंडे पसीने का लेप होने लगा। कुलवंत मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मेरे साथ क्या हुआ। इंसान कुड़िया भी एक अजीब चीज़ है। शहर में लूट मची थी तो सब की तरह मैंने भी उसमें हिस्सा लिया। गहने बदले और रुपए पैसे जो भी हाथ लगे वो मैंने तुम्हें दे दिए, लेकिन एक बात मैंने तुमसे नहीं कही। ईश्वर सिंह ने घाव में दर्द महसूस किया और करहाने लगा। कुलवंत कौर ने उसकी तरफ तवज्जो न दी और बड़ी बेरहमी से पूछा कौन सी बात। ईश्वर सिंह ने मूंछों पर जमते हुए लहू फूंक के जरिए से उड़ाते हुए कहा जिस मकान पर मैंने धावा बोला था उसमें 7 आदमी थे, 6 मैंने कत्ल कर दिए। इसी किरपान से जिससे तूने मुझे छोड़, इसे किरपान को हटाने की कोशिश करता है। सुन, एक लड़की थी बहुत ही सुंदर, उसको उठाकर मैं अपने साथ ले आया। कुलवंत कौर खामोशी से सुनती रही। ईश्वर सिंह ने एक बार फिर फूंक मारकर मूंछों से लहू उड़ाया। कुलवंत जानी, मैं तुमसे क्या कहूँ, कितनी सुंदर थी, मैं उसे भी मार डालता, पर मैंने कहा नहीं ईश्वर सिंह, कुलवंत कौर के तो हर रोज़ मज़े लेता है, अब मेवा भी चख देख। कुलवंत कौर ने सिर्फ इस कदर कहा हूँ, और मैं उसे कंधे पर डालकर चल दिया। रास्ते में क्या कर रहा था मैं? हाँ, रास्ते में नहर की पटरी के पास थोहर की झाड़ियों तले मैंने उसे लिटा दिया। पहले सोचा था कि फेंटूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं। ये कहते कहते ईश्वर सिंह की जुबान सूख गई। कुलवंत कौर ने थूक निगलकर हलक तर किया और पूछा फिर क्या हुआ? शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो। ईश्वर सिंह ने हलक पे बेमुश्किल ये अल्फाज निकले, मैंने बमुश्किल यानी वेरी विद ग्रेट डिफ़िकल्टी ये अल्फाज निकले, मैंने पत्ता फेंका, लेकिन उसकी आवाज़ डूब गई। कुलवंत कौर ने उसे झंझोड़ा, फिर क्या हुआ? ईश्वर सिंह ने अपनी बंद होती हुई आंखें खोली और कुलवंत कौर के जिस्म की तरफ देखा जिसकी बोटी बोटी थिरक रही थी। वो मरी हुई थी, लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। जानी, मुझे अपना हाथ दे। कुलवंत कौर ने अपना हाथ ईश्वर सिंह के हाथ पर रखा जो बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा था। ये उसका आखिर है और इसमें ये कहने की कोशिश है, मंटो की कहानियों में जो दिलचस्प बात थी कि अच्छे से अच्छे आदमी में भी कुछ नुक्स हैं और बुरे से बुरा आदमी भी, उसमें भी एक इंसानियत है। तो ये आदमी जो अपनी माशुका से इतने दिनों बाद मिल रहा है, जिसने इतने लोगों को मारा, इतना लूटा, एक ऐसी औरत जो मरी हुई थी उसके साथ एक तरह से उसका बलात्कार किया,
और अब वो अपने माशूका के पास आया है, लेकिन अब वो अराउज नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसमें एक गिल्ट है। उसमें अगर इंसानियत ना होती तो वो इसके भी मज़े लेता, लेकिन उसको कहीं ये बात इतनी चुभी कि मैंने कर कैसे लिया। जिस आदमी ने 6 आदमी को मारा है, मतलब उसमें भी एक इंसानियत है। और ये चीज़ क्यों इतनी ज़रूरी है और क्यों समझनी भी शायद मुश्किल है। क्या हम जस्टिफाई कर रहे हैं? क्या मंटो जस्टिफाई कर रहे थे? जस्टिफाई नहीं कर रहे थे। वो एक तरह से हम कहते हैं ना, अपने आप से प्यार करो और हर इंसान से प्यार करो। और वो कब हम कर सकते हैं? जब हम अपने और एक दूसरे की कॉन्ट्रडिक्शंस, पैराडॉक्सेस, अच्छी बुरी चीज़ों को हम एक्सेप्ट करें। तो वो हमेशा वो ग्रे एरिया को एक्सप्लोर करते थे। तो जैसे मुझे भी कुछ लोग जो क्रिटिक हैं, कुछ लोग कहते हैं अच्छा वो इतना दारू पीते थे, इतना सिगरेट पीते थे, वो तो बड़े ईगोइस्टिक थे। क्योंकि हमें आदत है बायोग्राफी हो तो उनको बिल्कुल पेडेस्टल पे आप पहुंचा दीजिए। एक ऑर्डिनरी आदमी कैसा कमाल कर देता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है, वैसी कहानियाँ हमें देखने की आदत है। बाहुबली हो जाए वो निजात स्पोर्ट्समैन की हो, किसी लीडर की हो, किसी भी हो, कि उसमें बस अच्छी 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 चीज़ें होती जाती हैं। पर वो एक तरह से हम जैसे ही थे, ही वॉज फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। उस सब में अगर हम मंटो के कन्विक्शंस और वो करेज को देख सकें और एडमायर कर सकें, तब जाकर शायद हम कभी उस तरह के इंसान को समझ पाते हैं। फिर मैं एक सवाल पूछने के बाद शायद मैं कुछ लोग पूछना भी चाहेंगे, वे पाकिस्तान क्यों गए? फिल्म में बहुत अच्छे तरीके से 2 डायलॉग आते हैं जहाँ ये बात क्लियर होती है कि क्यों गए पाकिस्तान। हो सकता है कुछ लोगों से मिस हुआ वो कहानी है, शायद मैंने इसमें सिलेक्ट की है, सहाय, आप पढ़िएगा। जी जी हाँ, सहाय। वो एक इनफैक्ट वो पूरा वाकया जो शाम के साथ हुआ, जिन लोगों ने देखी है वो ख़ास तौर से समझ पाएंगे। वो उन्होंने अपने बायोग्राफिकल स्केच मुरली की धुन, जो श्याम के बारे में लिखी थी उन्होंने, श्याम से कितना अच्छा उन्होंने बनाया मुरली की धुन, उसमें भी किया है। और सहाय जो उन्होंने बिल्कुल फिक्शनलाइज कर दी है, जिसमें मंटो का नाम मुमताज़ हो गया है और अलग अलग सब नाम उन्होंने बदल दिए हैं, श्याम को 3 कैरेक्टर्स में एक तरह से डाल दिया है। तो उसमें भी वो वाकया वो कहते हैं जी जो बल्कि बहुत इंटरेस्टिंग वे से शुरू होती है, जब वो कहते हैं कि ये मत कहो कि 1 लाख हिंदू मरे हैं, ये मत कहो कि 1 लाख मुसलमान मरे, ये कहो कि 2 लाख इंसान मरे। वहाँ से वो चीज़ शुरू। तो उनकी कहानियों में भी उनकी फ़िलॉसफी, उनकी जो सोच थी वो उसमें है। तो ये एक तरह से कंक्लूजन हम सब ड्रॉ करते हैं। कोई उनसे तो उस तरह से मिले नहीं, उन्होंने किसी को ख़ास बताया नहीं। मुझे याद है अशोक कुमार से मेरी बात हुई है। अच्छा। तब उन्होंने कहा था कि शायद हम भरोसा नहीं दे पाए उसे। वो तो उनको लगा नहीं, अशोक कुमार को बल्कि बहुत गिल्ट फील हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने उसके बाद उनको खत भी कई लिखे कि हम उनको, क्योंकि कई चीज़ें थी, ऑफ कोर्स एक डर भी था क्योंकि बहुत उस वक्त मुसलमानों पे हमले हो रहे थे, सब कह रहे थे, उनको कहा जाता था कि भाई आपके लिए तो पूरा एक नया मुल्क बनाया, आप वहाँ चले जाइए, है ना। तो वो कहते थे कि हाँ अगर बम्बई वहाँ चला जाए तो हो सकता है उसके पीछे पीछे मैं चल पड़ूँ। तो जो आदमी बम्बई से इतना प्यार करता था वो क्यों फाइनली क्यों गए? और भाई कितनी मारक लाइन है आपकी फिल्म में, वो शायद मंटो की ही कही होगी, इतना मुसलमान तो हूँ। हाँ, इतना बिल्कुल, इतना मुसलमान, हाँ इतना तो हूँ कि मारा जा सकूँ। हाँ। वो कहते हैं भाई तुम कौन से बड़े मुसलमान हो क्योंकि इतनी दारू पीते हो। तो वो तो दोनों तरफ से मरे, ना पूरे मुसलमान हुए ना इधर हुए। और क्योंकि वो एक्चुअली 7, 8, 6 जो लिखते थे अपनी अम्मी के लिए कि भाई उन्होंने अपनी अम्मी को ज़बान दी थी कि मैं कहूँगा, वो एक्चुअली टोटली एथिस्ट थे। उन्होंने कभी उनका मज़हब से ऐसा ना, कभी मैं जब रिसर्च भी कर रही थी, एक बहुत खूबसूरत मस्जिद थी लाहौर में, तब मैं चाहती थी कि लाहौर में शूट करूँ। तो मैंने कहा कि वो कभी तो मस्जिद गए होंगे, अपनी बीवी को लेके 1 आध बार गए होंगे क्योंकि मुझे वहाँ शूट करना है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। तो उनकी जो सफ़िया जो वाइफ है, उनकी बहन जो अभी भी हैं, जिन्होंने मुझे बहुत सारी कहानियाँ बताई, ज़किया खाला बुलाती हूँ मैं उनको, उन्होंने कहा वो कभी भी नहीं गए थे। तो इसीलिए मंटो को मेरे ख्याल से कि वो दैट वाज द लास्ट स्ट्रॉ। बहुत चीज़ें हुई होंगी, कुछ घबराहट भी हुई होगी, कुछ बिट्रेयल एक सेंस हुआ होगा, बट मेरा जो अपना असली, जो मेरा सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है, वो अगर मुझे उस आइडेंटिटी से देखेगा जिससे मैंने अपने आप को नहीं देखा, उससे बड़ा बिट्रेयल क्या होगा। जो सिर्फ 40s की बात नहीं है, हर तरह के वायलेंस, हर रायट्स में यही झेलना पड़ता है। जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ होती हैं जिन पे उस तरह का वायलेंस होता है, वो उसी डर से आज भी जीते हैं, कोई फ़र्क नहीं आया है। इसीलिए मंटो के बारे में ये फिल्म बनाना ज़रूरी था, ताकि हम जो एक अदरिंग हो गया है,
चाहे वो दलित्स हों, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, जो भी जो जिसे हम मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स से बाहर वो वाले जो लोग हैं भैया, वो वहाँ क्यों नहीं चले जाते? आज भी कई मुसलमानों को कहा जाता है भाई पाकिस्तान, उनका पाकिस्तान से क्या लेना देना? यू बिलोंग टू अ रीजन। इवन उर्दू के लिए मैं कहती हूँ, उर्दू एक जबान, एक रीजन की, एक रिलीजन की नहीं है। आज भी गुलजार साहब उर्दू में लिखते हैं, सिख हैं वो, किशन चंदर, श्याम, राजिंदर सिंह बेदी, हाँ धर्मेंद्र, ये जो उस पंजाब और उस सब नॉर्थ के थे, वो लोग सब उस जमाने में उर्दू में लिखा करते थे। सो इन दैट सेंस आई थिंक इट्स अ वेरी कंटेम्प्रेरी फिल्म एंड ही इज़ अ वेरी कंटेम्प्रेरी राइटर। फिल्म मेरे लिए एक सिर्फ जरिया है, तो मतलब आप फिल्म ही देखें ऐसा नहीं, आप उनके बारे में पढ़ेंगे, फिल्म नहीं देखेंगे तब भी चलेगा, दोनों करेंगे तो और अच्छा है। वैसे सोशल मीडिया पे एक और बहस चली इस किताब के आने के हाँ वो कि कवर पे क्यों, कवर पे जी मैंने सुना, मैंने भी सोशल मीडिया में सुना, अलिन जी से भी मेरी बात हुई इस बारे में नवाज कि हाँ ये एक्चुअली वायकॉम जो हमारी कंपनी है और इन लोगों ने मिलकर कुछ सोचा कि हम ऐसे करेंगे। दुनिया भर में ये होता है, इसमें मेरे हिसाब से मंटो तो वुड बी द लास्ट पर्सन हु विल हैव अ ऑब्जेक्शन टू, क्योंकि आप अगर किसी भी जरिए से अगर हम कोई अपना सोल नहीं बेच रहे हैं उस, क्योंकि अगर वो लॉजिक हम करें तो नवाज को मंटो प्ले ही नहीं करना चाहिए था, मतलब किसी भी एक्टर को किसी का भी रोल नहीं अदा करना चाहिए। बेन किंग्सली एक फॉरेनर ने गांधी का रोल किया, इसी पे हम लोग चलिए मोर्चा निकालते हैं, यू नो उस फिल्म की वजह से गांधी के बारे में और लोगों ने जाना। तो हम ऐसी चीज़ों पे मोर्चा निकालते हैं, जो लिंचिंग हो रही है, जो लोगों को मारा जा रहा है, जहाँ रेप हो रहा है, जहाँ बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे, ऐसी चीज़ों पे तो मैंने कभी नहीं देखा कि लोग सड़क पे आ जाए। तो मेरे हिसाब से मैं तो प्योरिस्ट उस तरह की नहीं हूँ। अगर इस किताब से लोग ज़्यादा मंटो के बारे में जानेंगे, फिल्म देखने की वजह से अगर लोग मंटो के और मंटो के ख़यालात जो हैं, जो उनकी सोच है, इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं हम मंटोयत फैलाने आए हैं। ये फिल्म भी मंटोयत फैलाने का एक ज़रिया है। एंड इफ़ यू आस्क मी व्हाट इज़ मंटोयत, इट इज़ आवर डिज़ायर टू बी मोर ऑनेस्ट, मोर फ्री स्पिरिटेड एंड मोर करेजियस। तो वो हम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो किताब से हो, चाहे यू नो। तो मैं अच्छा, आपकी रिसर्च का कोई ऐसा हिस्सा जो रह गया हो, आप फिल्म में दे नहीं पाए? बहुत हज़ारों चीज़ें रही गई, बहुत इंटरेस्टिंग कोई किस्सा? बहुत ऐसे वाक़या हैं जो रह गए हैं, मतलब जैसे बू का ट्रायल था, क्योंकि हम अभी ठंडा गोश्त और ट्रायल की बात कर रहे हैं, तो इसमें चुगताई और मंटो जो साथ एक उनका मंटो ने बू लिखी जिसपे भी उन पे कोर्ट केस हुआ, और इसमें चुगताई ने लिहाफ एक उनकी जो कहानी थी उस पर केस हुआ। तो दोनों का जब साथ एक ट्रायल हुआ तो मंटो से पूछा गया कि भाई आपने यू नो स्तन और इस तरह मतलब ब्रेस्ट का इस्तेमाल किया है, तो कहते हैं कि तो फिर क्या कहूँ मैं इसे, मूंगफली, मतलब जो चीज़ अगर हम कोहनी को कोहनी कह सकते हैं तो हम ब्रेस्ट को ब्रेस्ट क्यों नहीं कह सकते, यू नो। तो वो दोनों आपस में उनकी नोकझोंक भी बहुत होती थी, लेकिन एक दूसरे को डिफेंड भी बहुत करते थे। तो बाहर जब वो वेट कर रहे थे इस ट्रायल के लिए, तो जो कैलीग्राफिक थे उस ज़माने में, तो एक वर्ड क्या बोलते हैं उसको, ऑफसेट, या जिस तरह से पहले ज़माने में क्या प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग से एक लफ्ज़ करना होता था। तो वो ऐसे बैठे थे, कोर्ट चल रहा है पहले का केस, तो वो कैलीग्राफर से पूछा इसमें चुगताई तो कैसी लगी आपको मंटो साहब की बू? तो उन्होंने कहा मैंने नहीं पढ़ी है। तो आपने नहीं पढ़ी, पर आप ही ने तो पूरी इसको मतलब लिख के छापा है। आप फिर हाँ छापा ज़रूर है, पर मैंने पढ़ी नहीं है। कहते ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर मंटो ने समझाया कि भाई ये तो एक लफ्ज़ करते हैं, इन्हें थोड़ी पढ़ते हैं। तो फिर वो कैलीग्राफर ने इस्मत की तरफ देखकर कहा, इस्मत आपा क्या कहा कि लेकिन आपकी स्पेलिंग, मतलब मैं पैराफ्रेज कर रही हूँ, कि आपकी स्पेलिंग थोड़ी तंग है, मतलब उसमें काफ़ी गलतियाँ होती थी। तो मंटो ने उनको एकदम से डिफेंड करके कहा कि क्योंकि इनके जो ख्याल है, इनकी जो सोच है, वो इनकी कलम से ज़्यादा तेज़ है, इसलिए वो सोचती ज़्यादा फटाफट है, लिख नहीं पाती होती थी। तो मेरी जो फर्स्ट ड्राफ्ट जो थी वो इस सीन से 49, क्योंकि 1942 से 52 की कहानी थी, वो छोटी होते होते अब 2 घंटे से कम की फिल्म में अब क्या कर सकते हैं। लेकिन सॉरी मंटो 2 में मैंने तो अब तौबा कर लिया, मैं जिंदगी में कभी पीरियड फिल्म नहीं बनाने वाली हूँ। एक तो बहुत मुश्किल होता है, कर सकते हो अभी आप। मुझे कोई पीरियड अब कुछ करना ही नहीं है। पीरियड आप लोग पढ़ें, लेकिन बहुत कुछ हिस्ट्री में है, बहुत कुछ हो चुका है, बहुत लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं हम लोगों के लिए, ताकि नहीं पर नहीं किए तो हम उन्हें पढ़ें। बहुत कुछ हमारे लिए छोड़ के गए हैं। और क्रॉसवर्ड जैसी बुक स्टोर्स, आई होप आपकी बुक्स
लोग ज़्यादा पढ़े, मैं तो आती रहती हूँ, पास में ही रहती हूँ, इसलिए काफ़ी आती हूँ. सो थैंक यू वेरी मच. किसी को कुछ पूछना हो, अगर कोई सवाल हो. So any questions? Yeah. कि आपने 6 साल मंटो और सिर्फ मंटो में ही आप रहे, जी. तो बड़ा मज़ा आया. सोते उठते बैठते आपने वही सोचा, तो अब उसमें से निकलना या आप अभी भी वही हैं? नहीं, देखिए, उसमें फिल्म मेकिंग में भी अलग अलग फेजेस होते हैं. जो रिसर्च का फेज़ था, लिखना, उर्दू मेरी ज़बान नहीं है, मतलब मैं हिंदुस्तानी बोलती हूँ, दिल्ली में पली बड़ी हूँ, लेकिन कई लोगों की मैंने मदद ली. कुछ लाहौर में थे, कुछ यहाँ थे, तो वो एक पूरा फेज़ रहा. फिर लोकेशंस ढूंढना. बम्बई, उस ज़माने का बम्बई कहाँ है आजकल, सब ग्रिल्स, एसीज़, सैटेलाइट डिशेस हो गई हैं. फिर लाहौर को यहाँ ढूंढना पड़ा, क्योंकि वहाँ हम शूट नहीं कर पाए. दैट टाइम इट वाज द सेम टाइम जब एक्टर्स को अलाउ नहीं किया जा रहा था यहाँ, पॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से. फिर कास्ट और क्रू, फिर पैसे इकट्ठे करना ऐसी फिल्म के लिए, तो हर फेज़ में अलग अलग चैलेंजेस और अलग अलग मज़ा भी था. फिर शूट किया, शूट के बाद उसका म्यूज़िक, उसका साउंड, उसके विजुअल इफ़ेक्ट्स, बहुत चीज़ें की. और जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि मंटो मेरे लिए एक ज़रिया है, तो मुझे नहीं लगता कि मंटो कभी मेरे अंदर से निकलेंगे, क्योंकि मंटो फॉर मी इज़ एन आइडिया. इट्स नॉट जस्ट द मैन और द राइटर. जो चीज़, जिस चीज़ के लिए वो, जो उनके दिल के करीब थी, वो चीज़ें मेरे दिल के करीब हैं, और इसलिए वो हमेशा साथ में रहेंगे. मैं एक किताब भी लिखने की सोच रही हूँ, जो पूरी जर्नी के बारे में होगी. तो मेरा भी एक कथारसिस चाहिए ना, मेरी जो सारी मुश्किलें जो हुई हैं, कुछ लोगों को गालियाँ भी देनी है, तो उसको इत्मीनान से दें. अभी जल्दी जल्दी में देने में मज़ा नहीं आता है, तो वो भी करना है. एक थोड़ा सा और, वो कि पाकिस्तान में जो आप गई, तो वहाँ आपका क्या एक्सपीरियंस हुआ, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए. जी, नहीं, पाकिस्तान में कई बार जा चुकी हूँ मैं. 1996 में सबसे पहले कुलदीप नैयर, जो अभी हाल ही में गुजर गए, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने इंडो पाक के पीस प्रोसेस के लिए बहुत काम किया. तो एक साउथ एशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स करके एक शहर, एक ऑर्गेनाइजेशन फ्लोट की गई थी तब, तो उसका मैं हिस्सा थी. तो मैं पहली बार 1996 में गई, और उसके बाद कई बार जाती आती रही हूँ. मैंने वहाँ एक रामचंद पाकिस्तानी नाम की एक फ़िल्म जो थी, उसमें भी हिस्सा लिया, और उनके फेस्टिवल्स में भी गई. पीस इनिशिएटिव्स जो कुछ थे उसमें भी गई. कुछ बच्चों को हमने बहुत साल पहले 2004 में शायद कुछ स्ट्रीट चिल्ड्रन को लेके क्रिकेट का एक एक्सचेंज किया था, उसमें भी गई. तो गालियाँ भी बहुत पड़ती हैं, ट्रोलिंग भी बहुत होती है. मुझे भी पाकिस्तान भेजते रहते हैं कई बार सारे ये ट्रोल्स कि आप वहीं चले जाइए अपने बेटे को लेकर, इसका पासपोर्ट जब्त कर लो. आजकल तो कुछ भी कहो तो एंटी नेशनल हो जाते हैं हम. तो मेरा ये मानना है कि हम अपने ही इलाके में, मतलब जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, हम इसमें ही अमन और शांति नहीं ला पा रहे. और क्योंकि लोग तो ऐसे ही हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, हर तरह के हैं. और हम, जैसे अमेरिका हैज़ प्लेड अ बिग ब्रदर्स रोल इन ऑल ऑफ द वर्ल्ड, तो हम कुछ बिग ब्रदर हैं इस सब कॉन्टिनेंट में, साउथ एशिया में. तो हमारी तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना सर, कि हम वो चीज़ रखें. तो इसीलिए आई फील वेरी बैड कि हमने ऐसा एक बना दिया है माहौल. और मंटो मेरे हिसाब से तो उतने इंडियन हैं जितने पाकिस्तानी हैं, एंड वाइस वर्सा. तो मैंने बहुत अभी कोशिश की है कि किसी तरह हम वहाँ भी रिलीज़ कर पाएँ, एंड होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड वहाँ भी हम रिलीज़ करेंगे, और फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी आएगी, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी. मतलब बहुत कुल मिलाकर बहुत अद्भुत अनुभव रहे आपके. जी. क्योंकि देखिए, आप अलग अलग अनुभवों के लिए बस खुल जाइए, फिर सब कुछ आपको प्यार भी मिलेगा, कुछ अच्छी बुरी हर तरह के एक्सपीरियंसेस होंगे. पर हम लोग क्या करते हैं, अपनी दायरे में रहते हैं, तो उसकी वजह से एक ही तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं. वर्ल्ड व्यू एक बनता नहीं है. हम जैसा हम सोचते हैं, हमें लगता है यही सही है, बाकी सब गलत है. जब हम खुलने लग जाएंगे, अलग अलग चीज़ों, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ को देखने लगेंगे, तो हमें पता चलेगा कोई सही गलत कोई चीज़ ही नहीं है. रूमी भी ये चीज़ कह चुके हैं, अभी भी लोग कहते हैं देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग. वो उनको रूमी का बहुत अच्छा है, अंग्रेज़ी में ही पढ़ा है मैंने वैसे. तो देयर इज़, मीट मी एट द फील्ड वेयर देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग. तो उस तरह का कुछ है. सो आई ट्रूली बिलीव इन दैट, एंड आई थिंक ट्रैवल एंड बुक्स एंड सिनेमा, these are 3 ways of opening one's mind. बहुत शुक्रिया. सबसे बढ़िया सीन आपको कौन सा? आपकी मैं फिल्म कैसे में कहूँगी? सबसे बढ़िया, मेरे सारे बच्चों में आपके आप दिल मुझे के पूछ रही हैं करीब। कौन सा मेरा फेवरेट बच्चा है. बिल्कुल बिल्कुल. नहीं, अलग अलग जिसको चीज़ों के लिए आपने- अलग अलग जिसको फेवरेट्स आपने हैं. दिलो जहन से, जैसे मतलब नहीं, दिलो जहन से तो सब कुछ किया, उसमें कोई कमी नहीं की है. कुछ फिल्म बहुत, मतलब कुछ सीन ज़्यादा अच्छे
निकल के आते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं, कई कुछ चीज़ों में कुछ मैजिकल मोमेंट परफॉर्मेंस के होते हैं, कुछ चीज़ों में कुछ मैजिकल मोमेंट म्यूज़िक का, तो अलग अलग चीज़ों की वजह से अलग अलग सीन कुछ बहुत अहमियत वाले हैं जो अब कई बार चीज़ें नहीं भी पसंद आती फिर भी रखने ज़रूरी पड़ जाते हैं क्योंकि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द ओवरऑल नैरेटिव. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू चूज वन. कहीं ना Last कहीं एक question. साहित्यकार के दर्द को भी आप महसूस कर रही हैं फिल्मकार बनकर. जी बिल्कुल. Pam, I just have one last question, which is also regarding the book. So, this book we have seen that he's written majorly for sex workers also, and Not majorly, that's one of yeah, his that's one of his very important characters. And there's a particular moment in the movie also where a sex worker is actually denying to go to attend a customer, and then she hits that pan, which was very beautifully portrayed. And वो है इसमें हाँ. 100 पावर कैंडल बल्ब एक कहानी हाँ, है. and as far as showing this movie or making it accessible to people, it's all over the social media. Has there been an effort to make it visible amongst the sex workers, or in any way making them realize that there is something that appreciates them or acknowledges them? Well, that journey has just begun. Now there will be NGOs will take it, universities will take it, we will take it. You know, the film, when you release a film, it's for all. Except it doesn't become for all because it's not accessible. Now I'd like to know that आप लोगों में जिन्होंने फिल्म ये नहीं देखी, are you all going to make the effort? क्योंकि अभी भी कुछ चंद थिएटर्स में बची हुई है उसकी जान, है ना? So are you going to watch it? Those who have seen, are you spreading the word? Because you know it's up to all of us. Otherwise हम लोग बोलते हैं अरे यार ये चली गई, पर हम भी उसका हिस्सा हैं. जाने देते हैं. सब नहीं, बहुत लोग बोलते हैं मंटू मिंटू मंटू कौन है ये? जी 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 जी. सफिया, क्योंकि शायद एक औरत होने के नाते सबकॉन्शियसली लगता है कि जो औरतें, हम इन ग्रेट राइटर्स, पोएट्स, यू नो आर्टिस्ट की तो बहुत प्रशंसा करते हैं, पर उनके साथ जीना, ऐसे मैवरिक के साथ जीना आसान नहीं है. और मेरे फादर काफ़ी हद तक मंटो नुमा हैं, तो मैंने भी झेला है. मैं उनको बहुत इज़्ज़त करती हूँ और उनसे बहुत मतलब थैंक गॉड फॉर हिम कि मेरे अंदर वो कई चीज़ें जो आई हैं, जो एक कन्विक्शन है, करेज है, वो सब आया है. पर उनके साथ जीना आसान नहीं है. एंड आई एम श्योर इट वॉजंट ईजी फॉर माई मदर, यू नो. तो सफ़िया जो उनकी वाइफ का कैरेक्टर है, मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी था कि कैसे आप एक क्वाइट डिग्निटी, क्योंकि वो ज़माना नहीं था कि आप चीख चिल्ला रहे हैं या छोड़ रहे हैं या उस तरह से, पर उनकी भी, सफ़िया की भी क्या एक पूरी ग्राफ थी, वो बहुत ज़रूरी था मेरे ख्याल से दिखाना. और औरतें उस ज़माने में पब्लिक स्पेसेस में भी कम थी, पर जितना भी औरतों को दिखाया गया. इसलिए मेरा मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि औरत ही प्रोटैगनिस्ट हो फॉर अ फिल्म टू बी अ फेमिनिस्ट फिल्म. समटाइम्स दे आर, इट्स अ वुमेन सेंट्रिक फिल्म एंड इट्स मोस्ट रिग्रेसिव. नाम नहीं लूँगी, लेकिन ऐसी फिल्में भी होती हैं. So I think it's important that how we portray women in any film, and it doesn't mean they all have to be good. They just have to be layered and reflective of, you know, all the layers that exist in life. So फिल्म में बहुत ही कम लिखा हुआ है. पर हाँ नहीं, बट फैज़ ने उनको वो भी सपोर्ट भी बहुत किया था. ऐसी बात नहीं है कि उनके हक में भी बोले थे उस ज़माने के प्रोग्रेसिव राइटर्स. और फैज़, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही डिड नॉट, ही सेड दैट लाइन जो शायद आपने फिल्म में देखा है, उसके बावजूद मैंने 2 पोइट्री फैज़ की यूज़ की है. लास्ट का जो गाना है, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बिकॉज इट्स अ वेरी पावरफुल सॉन्ग. और आई वॉन्टेड टू एंड विथ अ सॉर्ट ऑफ अ कॉल टू एक्शन. मेरा एक्टिविस्ट सेल्फ थोड़ा बीच में आ गया, बट एब्सोल्युटली. एंड जो उस ज़माने में इट वाज़न्ट सो ब्लैक एंड वाइट. आज मतलब जैसे कोई राइटर्स मिल के बात नहीं कर सकते एक दूसरे के, या डिस्कस करते थे एक दूसरे की, मतलब धज्जियाँ भी उड़ाते थे और फिर रात को बैठ के दारू भी साथ पीते थे, यू नो. सो देयर वाज अ सेंस ऑफ कॉमराडरी एट दैट टाइम. सो आई थिंक तो फैज़ का वो दाग दाग उजाला इज़ ऑल्सो, यू नो, सुबह आज़ादी जो उनका पार्टीशन पे लिखा गया था, बिकॉज दैट रिफ्लेक्टेड, आई डोंट नो वेदर मंटो एवर रेड दैट. तो उस तरह की फिक्शनल लिबर्टीज़ तो एज अ फिल्म मेकर जो अपना भी काफ़ी कुछ उसमें डाला है. बहुत लाइनें मंटो से भी बुलवाई हैं जो मैं कहना, जैसे मुझे किसी ने कहा कि ये बहुत आपने खूबसूरत लाइन है मंटो की, जब वो कहते हैं कि या तो जब शाम उनको कहते हैं ना, अपने अंकल के बारे में बताते हैं, चाचा के, तो वो कहते हैं या तो सबकी ज़िंदगी अहम है या फिर किसी की भी नहीं. तो मैंने कहा सॉरी, ये वैसे मंटो की नहीं है, ये सार्त्र और पता नहीं कहाँ से जो मतलब जो चीज़ें मैं सोचती हूँ. Yeah, and he recites Dag Dag. So, you know, of course, it's
90% of the dialogues are, or maybe 80% of the dialogues are from Manto's writings, but it is a work of fiction. जैसे वो खिड़की पे पास होते हैं, and when he touches Safiya's stomach and he says, ये एक आज़ाद हिंदुस्तान में पैदा हो गए, you know. But that's obviously, I don't know उन्होंने अब सफिया के बीच में क्या कहा था, पर मुझे ये पता था कि मंटो यहीं रहना चाहते थे. So उससे one can imagine that he must have been happy कि वो आज़ादी से खुश थे और अब ये बच्ची यहाँ पैदा हो गई उससे. तो you know, those kind of liberties you have to take. Anyway, I have to run. Working mothers' problems, which the world is not so sympathetic to. But book signing, will you be able to do some book signings for the people? Or quickly, maybe quickly, two, three. yeah. Thanks.